case, the vehicle was in the custody of late Khalid, who was an automobile dealer. The vehicle was taken from him by one of the police sub-inspector whose name is Wadi. Vehicle was used to keep exploding near the house of Sheikh Amari. Media in Mumbai started collecting information about this Wadi and some other people. Who is Wadi? After getting information, I was told he was police sub-inspector. He was suspended about 16 years back, and recently he was reinstated in service. The decision to reinstate in service was neither taken by CM or Home Minister. It was taken by CP himself, and he was reinstated, and immediately he was given very important sensitive assignment. No, that was is under arrest now. I don't know whether 87 or 9. Their investigation. One of the agencies has taken decision to arrest. The gentleman Hiren, who is no more, who was assassinated, his wife has made a complaint to the police. The Wadi is responsible for her husband's murder or death. You can say death, it's a murder. So there is a specific allegation against this officer by DC's wife. Then question comes, this happened in the area operation of Mumbai Police. 2, it happened, the vehicle which was used by police officer was in the custody of fellow whose assassination has been made. 3, deceased wife has taken the specific name of particular police officer, and when Mr. Commissioner Police met us, these questions were asked to him, and he suggested we will go in depth and we will investigate. But now, when government took conscious decision to shift him from Bombay Commissioner
to the Home Guard, I think then he made such a wild allegation. Prior to shifting him from Bombay Police in 2 or 3 weeks' time, he never mentioned a single thing or he never made any allegation against Home Minister. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे. अनिल देशमुख यांच्यावरती झालेले आरोप गंभीर असल्याचं पवार यांनी यावेळेस म्हटलंय. थेट दिल्लीहून ही पत्रकार परिषद सुरू आहे. परमबीर सिंग यांनी केलेले आरोप गंभीर असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलेलं आहे. परमबीर सिंग यांच्या आरोपानंतर आता पवारांनी ही पहिलीच प्रतिक्रिया दिलेली आहे. सध्याची मोठी बातमी, अनिल देशमुख यांच्यावरती झालेले आरोप गंभीर असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलंय. This important information. Now for us, he made the allegations. It is the prerogative of the Chief Minister to take appropriate decision, and CM has full authority to take decisions regarding allegations, inquiry about these allegations. So one aspect of allegation is against Home Minister, and second allegations are against CP himself. If I ask, I will definitely discuss with CM, and I will suggest that this is very important and sensitive case. Allegation is made by police authority of Mumbai against Home Minister, and also there are series of lapses by certain sections by Bombay Police, which affect the reputation of Bombay Police too. So I honestly feel there has to be in-depth inquiry. Inquiry should be made by such officer or such a person who enjoy full respect in the police administration and at public at large. I am going to suggest, I don't know my suggestion, Chief of Maharashtra, Bombay, and also contributed a lot for Indian police. Mr. Riveral's reputation is very, very high. And if we accept this responsibility, the truth will come, and definitely public at large will start believing the police and reputation is very, very high. And if we accept this responsibility, the truth will come, police particularly. Now, if you want to ask anything, certainly you got anything. पवार साहब, क्या सरकार को किसी तरह का खतरा है, क्योंकि बीजेपी ने इसमें अफसर निकाल लिया, आक्रामक है, क्या सरकार? Now, if you want to ask anything, बात ऐसी है, तो हमने ये देखा कि प्रतिपक्ष के नेता दिल्ली में आकर जाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली. उन्होंने डिमांड किया कि मैं ये समझ सकता हूँ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन मालूम है ये जिम्मेदारी है, और इसलिए उन्होंने इस तरह की डिमांड की. तो मैं कोई इनको कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता,
ये उनका अधिकार है, ठीक है, उन्होंने किया। मगर जहाँ तक सरकार की वो स्टेबिलिटी है, सरकार के स्टेबिलिटी के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सीरियस एंड गवर्नमेंट इज फुल्ली अवेयर कि ऑल दीज एलिगेशन in the form of letter written by former CP. These allegations had been made by him when he was shifted from important post to unimportant post. पवार साहब, मेरा सवाल ये है, पवार साहब सवाल ये है कि अनिल देशमुख के पवार साहब पवार साहब, आपने फैसला जो है मुख्यमंत्री पे छोड़ दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते हुए जो जांच आपने सजेस्ट की है वो फ्री एंड फेयर होगी और अपोजिशन उस बात को एक्सेप्ट करेगा? नहीं, बात ऐसी है कि उनका इस्तीफा देना ये इस बारे में ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की। जरूर ये सब और इसका इन्फॉर्मेशन देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने तय नहीं अभी तक की। सर, लेकिन करने वाले दिल्ली में आप लोग क्या शाम को बैठक करेंगे शिवसेना के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ? नहीं, कोई बैठक नहीं। मुझे मिलने के लिए मेरे स्टेट के पार्टी चीफ और जहाँ के हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता आने वाले हैं। सर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा मांग रही है, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इस्तीफा मांग रही है, कह रही कि इस्तीफा दे दें आप। नहीं, ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी, इस्तीफा मांगेगी। सर, आपको लगता है अनिल देशमुख के रहते हुए मतलब जो ये इंक्वायरी क्योंकि उनके ऊपर सारे पॉइंट बात ऐसी है कि मैंने जिस व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया है इंक्वायरी के लिए, इन्होंने इसका स्वीकार किया तो कोई इनके रास्ते में आ नहीं सकता, सच्चाई सामने आ सकती। सर, इस घटना के बाद आपके सहयोगी जो दल है, चाहे कांग्रेस हो शिवसेना हो, उनका रुख क्या है? जाहिर है बातचीत 24 घंटों में हुई होगी। मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने शिवसेना से बात नहीं की, मैंने इनसे बात नहीं की। मैंने सीएम साहब से खाली बात की यहाँ आते समय कि इस बारे में हम हमारा व्यू है आपको बताएंगे। बात इतने सिर्फ ये बात क्या हुई, इतनी हुई। गंभीर सिंह इस तरीके का आरोप क्यों लगा रहे हैं सर? वो तो दिया क्यों इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? सीधी बात है कि ये उन्होंने कल आरोप लगाए, इससे पहले क्यों नहीं लगाए, ये भी बात आ सकती है सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो पिछले महीने का या कल के 16 तारीख का था, उसमें 17, 18, 19 ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सडनली जब उनको पता लगा कि उनको मुंबई पुलिस से हटाकर सोमवार को जाना होगा, तब शायद ये बात उन्होंने सामने की। चाहेंगे कि कोई तटस्थ एजेंसी, सीबीआई जैसी कोई केंद्रीय एजेंसी इस मामले की जांच करे, क्योंकि आरोप पुलिस के एक बड़े अधिकारी सरकार के एक बड़े मंत्री पर लगा रहे हैं। इसीलिए मैंने जो नाम सजेस्ट किया है इन सभी के ऊपर है। आपको लग रहा है सरकार गिराने की कोशिश हो रही है इन एजेंसियों के माध्यम से? आपका आरोप है सरकार गिराने की कोशिश होगी या नहीं मुझे मालूम नहीं, सरकार का इस पर कोई असर नहीं होगा ये मुझे मालूम है। और ये सरकार को इससे एक डिस्टेबिलिटी तैयार करने की कोशिश हो सकती है, मगर इससे कुछ होगा नहीं। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इन व्हाट कैपेसिटी शरद पवार वाज बीइंग ब्रीफ्ड बाय सीपी, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। रविशंकर प्रसाद ने कहा इस लेटर पे ही कि सीपी परमवीर भेज दे भाई, शरद पवार को ब्रीफ करने की बात की गई। इन व्हाट कैपेसिटी? उनको पूछिए ना,
पवार सर ये इशू उनको फुर्सत पवार है। सर मेरा सवाल है उद्धव ठाकरे की तरफ से अगर आपको अनिल देशमुख के इस्तीफा लेने की बात या हटाने का प्रस्ताव आता है तो आप तैयार होंगे? सिंपल ये बात है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सर विल द पार्टी ये टेक इट्स ओन डिसीजन? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस बारे में सीएम साहब के सलाह जरूर देंगे, हमारी पार्टी चीफ स्टेट के उनका सलाह देंगे, हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता इनकी सलाह देंगे, और जो कुछ कहना है देशमुख जी को वो भी इस बारे में उनका सुनना, ये भी हमारा फर्ज है। और ये करने के बाद आगे क्या करना हम मिलकर तय करेंगे, कल तक करेंगे। इस कंट्रोवर्सी में आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार बदनाम हुई है, गंभीर आरोप लगे, कहीं न कहीं एक सवाल उठा है सरकार के कामकाज के तरीके पर? नहीं, बात ऐसी है कि ये डेलीबरेट किए है, ये कैसे किया इस बारे में मैं कोई अभी भाष्य नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये बात साफ है कि जो एलिगेशन किए हैं इससे पहले क्यों नहीं किया, इससे पहले क्यों नहीं बात की है, अभी क्यों गई? क्या वाजे की जांच परमवीर सिंह तक जाएगी, इसलिए परमवीर सिंह ने ऐसे आरोप किया? आपको क्या लगता है ये पूरा मामला देखते हुए वाजे की जांच जाएगी परमवीर सिंह तक? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर ये मुझे बताया गया कि वाजे को रीस्टेट करने में कुछ इनिशिएटिव इसमें जिन लोगों ने ली, इसमें एक सीपी का नाम है। वहाँ जो कमेटी थी, ये कमेटी फेल कर रहे थे एक सीट, तो 16 साल के बाद वाजे को सर्विस में लाने में कुछ न कुछ इसमें हिस्सा उनका है, और आने के बाद उनको सबसे बड़ा सेंसिटिव जॉब दिया, वो काम उनसे हुआ है। पवार साहब एक सवाल ये है कि अनिल देशमुख आपसे मिले थे 2-4 दिन पहले। I have not consulted either CM or just now. पवार साहब आपसे अनिल देशमुख 2 दिन पहले दिल्ली में जब घर पे मिले थे तो आपने उनको ये कहा था कि कुछ शिकायतें आपकी आ रही हैं, क्या परमवीर से पहले भी आपके पास कुछ शिकायतें आ रही हैं? ऐसे कहा था मैंने, खबरें हैं सर, ये खबरें मुझे मालूम नहीं। क्या शिकायतें मिल रही थी पहले परमवीर से पहले भी आपको? फडणवीस साहब ने कुछ कहा था, ये बात सच है, किसी ने नहीं कहा। पवार साहब सर आप कह रहे हैं कि परमवीर जिम्मेदार है वाजे को वापस सर्विस में लाने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या गृह मंत्री के पास कोई फाइल नहीं पहुंचती? गृह मंत्री के नॉलेज में, सर सुन लीजिए, गृह मंत्री के नॉलेज में क्या सवाल नहीं होता? सवाल ये भी है क्योंकि शिव सैनिक थे, वाजे शिवसेना में थे, नेता विपक्ष ने आरोप लगाया है कि खुद उद्धव ठाकरे ने उनको वापस सर्विस में लेने के लिए पैरवी की थी, वकालत की थी। जहाँ तक मुझे बतलाया गया इसमें गवर्नमेंट ने, यानी आइदर होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनका उनको रीइंस्टेट करने में कोई रोल नहीं है। तो फिर उनका रोल क्या है? क्या गृह मंत्री फाइलें नहीं देखते? उनका रोल क्या है फिर? गृह मंत्री सब इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट करता है। पवार साहब 5 साल सरकार चल जाएगी महाराष्ट्र में, मुझे कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती। पवार साहब परमवीर सिंह ने ये लेटर लिखने की घटना घटी है, क्या आपको लगता है कुछ राजनीतिक हवा उसको मिली है और उसके चलते परमवीर सिंह ने ये लेटर लिखा है? मालूम नहीं, मेरे पास कोई इस बात का सबूत नहीं है, मगर मैंने सुना दिल्ली में आकर गए थे, जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ये भी दिल्ली में आकर गए थे, कुछ लोगों से बात की थी, उनका वो अधिकार है, मैं नाम नहीं कह सकता, और इसके बाद वहाँ एलिगेशन शुरू हो गई। पवार साहब ये भले कहा जाए कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन दबी जुबान या खुली जुबान ये कहते हैं कि सारी पावर पवार साहब के पास है, जो दिल्ली से फैसला लेते हैं। पवार साहब ने क्या फैसला लिया है कि पवार साहब सारे फैसले लेते हैं महाराष्ट्र के? आपका फैसला क्या है अनिल देशमुख को लेकर के? कोई अधिकार नहीं, मैं कुछ फैसला लेता नहीं, पूछे तो सलाह देता है, नहीं पूछे तो नहीं देता। पवार साहब आपने भी महाराष्ट्र का नेतृत्व किया है, 100 करोड़ रुपए हर महीने की उगाही का क्या कभी पहले आपने सुना? और क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये ऐसा आरोप लग रहा है तो उसमें सीपी की कोई भूमिका नहीं हो? किसी सीनियर ऑफिसर एक ऑफिसर को पूछेंगे, वो हंसेंगे 100 करोड़ हर महीने की बात कहने के बाद। तो कितने मिलते हैं सर?
मालूम नहीं आपका क्या एसोसिएशन है, कि कलेक्शन में आपका कोई इंस्टॉलमेंट होगा, कोई एसोसिएशन होगा तो आप मुझे इंफॉर्मेशन दे दो। पवार साहब पहले सचिन वाजे को शिवसेना से लिंक किया जा रहा था, अब परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें अनिल देशमुख का नाम ले लिया। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि बार बार घूम फिर के सरकार के ऊपर ही सब कुछ आ रहा है? ये बात ऐसी है कि जो सीपी के बारे में कुछ कदम उठाए शायद उनको पसंद नहीं होगी, शायद दुखी होगी, और ये जिम्मेदारी अपनी सिर पर नहीं आनी चाहिए। इस बारे में डाइवर्सन की क्या कीजिए होती। सर ऑपोजिशन बोल रहा है इसमें बेटिंग का भी एंगल है सर, आईपीएल बेटिंग का भी एंगल है सर उसमें। सर आपने कहा अनिल देशमुख के जो रेजिग्नेशन है उसका भी एक ऑल्टरनेटिव ओपन है, क्या क्या ऑप्शन है सर? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो पाएगी जब तक होम मिनिस्टर अनिल देशमुख रहेंगे, इस पे क्या? ये मैंने कहा है कि हम जिस व्यक्ति का नाम दे रहे हैं वो इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, इसमें हमारा भरोसा है। एक, जहाँ तक मेरे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, वहाँ तक मेरे लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता, इन सबों के साथ हम कल बैठकर बात कर सकते हैं। कोई भी अल्टरनेटिव मुझे मालूम है जो कुछ नहीं। और साहब आपने एक बात और कही, हम आगे जा सकते हैं। एक बात आपने और कही कि वो समझ में नहीं ऐसे क्या परमवीर आप करेंगे, परमवीर भी दिल्ली आकर गए थे और इनसे देवेंद्र फडणवीस से भी कुछ मुलाकात हुई इस आरोप लगाने के पहले। क्या आप ये कह रहे हैं कि परमवीर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उसके पहले उनकी अपोजिशन के नेताओं से और जो फडणवीस और उनकी मुलाकात हुई थी उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं? बात ऐसी है कि उन्होंने कई लोगों के साथ बात की होगी, मेरे पास कोई खास सबूत नहीं है, मगर मैं ये समझ सकता हूँ कि प्रतिपक्ष के नेता ने इसमें कुछ इल्जाम लगाए तो उनका फर्ज है, इनका अधिकार है, इसे हम सीरियसली लेते हैं। फैसला कब तक हो जाएगा सर? कब तक फैसला हो जाएगा देशमुख में? मुझे लगता है कल या परसों हम बैठेंगे, कल ही बैठेंगे, कल डिसाइड कर देंगे कल। हाँ, क्योंकि आने के बाद बैठेंगे। सर ऑपोजिशन आरोप कर रहा है सर कि इसमें बेटिंग का भी एंगल है और उसमें मंत्री और पुलिस अफसर भी इसमें इन्वॉल्व है। नीतीश रानी ने भी अभी एक ट्वीट किया है जिसमें पुलिस अफसर इन्वॉल्व है बड़े लेवल पे, वजह के मार्फत ये पूरा किया जा रहा है। क्या बेटिंग का भी इसमें एंगल है? मुझे मालूम नहीं, मैंने सुना नहीं बेटिंग का। इसमें दो इश्यूज है, एक सीपी ने किए हुए एलिगेशन एंड बी देवकर की आत्महत्या, ये दो इश्यूज इसमें है। सीपी ने अपने लेटर में लिखा है कि देवकर के इशू पर मेरे ऊपर दबाव लाया कि यहाँ केस FIR करे। तो 7 बार जो MP होता है जिसकी आत्महत्या मुंबई शहर में होती है तो इसका कॉग्निजेंस पुलिस को लेना पड़ता है, नहीं लेना ये ठीक नहीं है। और इस बारे में कुछ कहा होगा ये तो इसमें मुझे कोई गलती लगती है। सर जब परमवीर आपसे मिले थे क्या क्या बातें हुई थी आप दोनों के बीच में? उन्होंने बताया कि भाई मुझे जो शिफ्टिंग की बात हो रही है मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है। अनिल देशमुख बारे कुछ भी चर्चा नहीं की उन्होंने आपसे? परमवीर जब आपसे मिले तो उन्होंने अनिल देशमुख ने ये बात कही कि मेरे डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था, इतना कहा। Sir, is it putting a bad reputation to the party that the Home Minister has been given an allegation? इसमें सच्चाई क्या ये बाहर आने के बाद होगा, आज नहीं। And do you think that he should withdraw from the party, from the post till the time his... I have already said, I have already decided. थैंक यू सो मच सर। आज अगर कोई मीटिंग नहीं है तो हम लोग जाएं? सर कोई मीटिंग है क्या शाम आज को? कोई अगर मीटिंग नहीं हो तो हम लोग जाएं? मीटिंग है क्या सर आज? ये पता सर शाम को है मीटिंग, बता दीजिए। सर तो कमला मीटिंग पोस्टिंग है बाहर। रुकना पड़ेगा सर रात के 8 बजे तक। हाँ आज नहीं होगी ना, चलो आज छुट्टी ले रहे हैं ना संडे सर? संजय राउत आएंगे मिलने शाम को। आज संडे है सर, आपका है। हेलो एक सेकंड होल्ड करो भाई, पवार साहब ने बोल दिया उनका भी संडे है। हेलो ओके सचिन एनसीपी नेताओं से आपकी स्थानीय नेताओं से महाराष्ट्र में
Yes, I can hear you. Okay. तो आज 7 बजे नहीं है कोई बैठक, आज 7 बजे नहीं है। तर हे होते राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत परमवीर सिंग यांनी पाठवलेल्या पत्रावरती भाष्य केलेलं आहे। आरोप अत्यंत गंभीर असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटलंय। खंडणी वसुली खरंच झाली का याबाबत कसलाही तपशील पत्रात नसल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे। परमवीर सिंग यांच्या बदलीच्या प्रकरणी भेटलो होतो असं शरद पवार यांनी म्हटलंय। परमवीर सिंग यांच्या पत्राबाबत आता शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे। वाझेच्या पुनर्नियुक्तीचा निर्णय तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी घेतला असं देखील पवार यांनी म्हटले। वाझेला जबाबदारी तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनीच दिली असं देखील शरद पवार यांनी म्हटलेलं आहे। वाझेला जबाबदारी तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनीच दिली असल्याचं शरद पवार यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितलंय। परमबीर पत्राच्या आरोपांची सखोल चौकशी करू असं स्पष्टीकरण देखील शरद पवार यांनी दिले। परमबीर सिंग यांच्या आरोपानंतर आता पवारांनी ही पहिलीच प्रतिक्रिया दिलेली आहे। अनिल देशमुख यांच्यावरती झालेले आरोप गंभीर असल्याचं पवार यांनी यावेळेस म्हटलंय। आरोपांबाबत कारवाई करणं ही मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी आहे असं शरद पवार यांनी म्हटलंय।